Invite Yasser and Party to come on the stage to perform the college anthem.
सागर से यूं ही नदियां नहीं मिला करते, सागर से यूं ही नदियां नहीं मिला करते, पत्थर को काट कर है आगे बढ़ा करते। चलो एक नया पत्थर निर्माण करते हैं, चलो एक नया पत्थर निर्माण करते हैं, ये जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम नईमुन्निसा मैम एंड प्रोफेसर अतर अजीज रैना, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड प्रोफेसर ताहिर नदीम मीर साहब, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू and welcome to all of you. Let me introduce myself. My name is Rahil Sheikh. I am from semester 3rd. As you know, we are gathered here to celebrate the Fresher Days. I want to welcome you all the wondrous event celebrating Fresher Party of our juniors. इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखे हैं, इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखे हैं, बड़े प्यारे बड़े अपने से लगे हैं। ये चेहरे कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे, ये चेहरे कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे, हुनर और ज्ञान अपना दिखाएंगे। आयशा है आपसे हमारी इतनी ही, आयशा है आपसे हमारी इतनी ही कि आप हमें भी बड़े दिल से अपनाएंगे। Let's start this program. First of all, I would like to invite Athar Aziz Raina and Professor Tahir Nadeem sir to present the bouquet to Naimunnisa ma'am with the tokens of respect and tokens of love. Memories. Oh yeah. Thank you so much, ma'am. I would request to principal ma'am, Athar sir to please cut the cake. वो कहाँ लड़का? केक लाओ। फ्रेशर्स को बुलाओ, सारे आ जाओ। यहाँ केक देखो ना, पीछे कहीं लगा था सारे। केक इस तरफ। पीछे हो जाएगा फोटो। बच्चे पीछे जो लंबे सारे सारे एक अच्छा सा ग्रुप फोटोग्राफी खुद से ले वो कहाँ है, वो जो कुछ लाया था दिलाने वाला जिसको पता है जिसको पता वही बोलो। जिसमें शर्माने की बात है हमको नहीं पता ध्यान से
कोई बात It's important between perspective. चलो हो गया रखो हाथ That the part of our life that we are going to reach in our memories in between. It is the place where we live our life to the fullest, where we learn about the life, and this life makes us stronger to fight our own battles. And it makes us serious about our careers. So after college, it remains a memorable time for all of us. पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए, पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए, नजर भर लगे ख्वाब एक आरमा हो जाए, समुद्र पी गए फुहारे बन के इंतजारों में, उड़ान कुछ हमारी मर्जियों के नाम हो जाए. I would like to invite Musarrat Jabin from semester 3rd to present a speech on the stage. Seniors, my dear friends, and my juniors. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know, that this party is organized solely to welcome all juniors, to fill with laughter and entertainment. This day is organized to make it special and you and happy. You will make a lot of memories here. When we go to a new place and we face life, we have anxiety and fear. But dear juniors, relax. Trust me, this journey is going to be roller coaster ride of your life with unlimited fun. Best education, self-growth and ultimate achievement. A day will come when your eyes will be full of fear to bid farewell to these prestigious institutions and everyone. A college is not just about education and training, but it's more than that. A college is a place where you can bring out your talents. You will build your good characters here. So dear juniors, don't feel shy or fear. Just bring challenge, just bring the best out of yourself. In the end, you will get these happy moments. Dear juniors, be positive in your life. Interact more and more with others to build your personality. Learn to take advantage of the smallest things. Then you will be able to become a decent person. So last but not the least, I wish you all happiness, success as you are about to start a new life with new faces. Thank you. Have a great day.
Thank you so much, Musarraf. ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की शाखों को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। I would like to invite Ishashmi from semester 3rd. Very good afternoon to our respected principal ma'am, respected lecturers, dear juniors and senior friends and my dear classmates. At the very outset, I would like to express my best compliments to you all on the occasion of the Fresher Day today. You know that we are all assembled here to celebrate the Fresher Day. I am privileged to stand before you to welcome all the junior friends. I must congratulate them all on selecting the best college in the district. It is a fact that we have dynamic management, motivated lecturers and devoted professors. We are taught in a beautiful environment. You have stepped into this college with fresh thoughts, noble alarms, high hopes and aspirations. Assure you that your ambitions will be accomplished by your successful guardians of our beloved lecturers. The flag of GDC Thanamandi is hosting in every nook and corner of our state due to brilliant performance shown by some of our senior friends. It is the first and foremost duty of yours to follow the footsteps to achieve to our college. We the seniors are always ready to extend the junior regarding studies. The function like this will create a kind of friendly atmosphere among us. There is saying in English that friendship is a ship that cross the ocean of life. It's time I took leave of you, wishing you a bright career. Thank you very much for giving me this Thank you so much, Nisha. गुल खिले हैं गुलशन में, अब गुलाब की बारी है। गुल खिले हैं गुलशन में, अब गुलाब की बारी है। अब जरा दिल को थाम के रखें, अब खूबसूरत से गाने की बारी है। I would like to invite Mr. Yasir to please come on the stage and present their song. और मेरे तमाम जूनियर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड आफ्टरनून। मैं आपके सामने एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद ही लौट आऊँगा, मैं खुद ही लौट आऊँगा। मुझे नाकाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों? मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने
मैं सब कुछ तस्लीम कर लूँगा, ये चल जाया होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मेरी हंसती नहीं मोल फिर भी बिक नहीं सकता, मेरी हंसती नहीं मोल फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना फिर जरा नीलाम होने दो, वफाएं बेच लेना फिर जरा नीलाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। नए आगाज से ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो, नए आगाज से ही क्यों हौसला छोड़ बैठे हो, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा इंजाम होने दो, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा इंजाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे नाकाम होने दो। Thank you so much, Yasser. Next, I would like to invite Faisal Nazir Khan of semester 5th. ये Respected principal, ma'am, परीक्षा के बाद Today we celebrate the Fasting Party Morning for new batch of mathematics. Today we discuss about the mathematics and the history of mathematics. Firstly, we discuss about the Friendship Party. Friendship Party is the start of the new journey. It is of the new journey of the life. It is an important kind of introduction to the senior society member and institution as well. This is usually celebration in college and university to welcome the new batch of students. Remember and thereby given blessing and best wishing to everyone joining the institution. Now we will discuss about the topic today by topic mathematics and history of mathematics. Firstly, mathematics is the science of structure, order and relation that has evolved from elementary particle, quantum and described the shape of objects. It deals with the logical reasoning and quantity calculation and the development of idealization and abstraction of subject. Since the 17th century, mathematics has been indispensable adjacent to physical science and technology, and in more recent time it has assumed and similar views in the quantity aspect of life science. Next, we discuss about the history of mathematics. History of mathematics deals with the origins of discovery in the mathematics and mathematical method of the past. Before the modern age and worldwide stream of knowledge, Britain is the example of new mathematical development has come to light only in few locals. Algebra is one of the most important branch of study for mathematics as it applied in
other field of study as well as physics, chemistry, MLB as well as economic and accounting. The study of your faculty as well as researching assistant the student to deal with your challenge and obstacle and difficulty in daily and school life, especially in learning mathematics. To conclude, I would like to welcome all your beautiful families. I wish all you the best luck for future on his journey of education of institution. So let's come start the ceremony of victory and ceremony of food games and start to create memory. If any mistake in my speaking, please forgive me. Thank you. Thank you so much, Faizan. Next, I would like to invite Zabina Kosar from semester 3rd. I would like to welcome each one of you on this beautiful day to start a new journey of life. This party is organized to welcome you to fill you with laughter and enthusiasm. I would like to extend a hearty thanks to everyone for giving me this lovely opportunity to welcome all the charming faces to our family. This day is organized to make you feel special in a new environment. The day will be of excitement, happiness, laughter, and making you feel blessed. You will make a lot of memories here. Leaving a precious because I was a precious waiting to start a new journey with new people and had the same feeling as you people are having now. I can see my memories flash slowly. When we go to a new place and begin a new phase of life, we have anxiety and fear. So this week is prepared to motivate and encourage, fill you with optimism to bring out the best of you and actively participate. So relax the hands and informal wish to you all from our side. Trust me, this journey is going to be the roller coaster ride of your life. With all your friends and attention and achievement. And they will come when your eyes will be full of tears to bid farewell to this institution and happy. This is a program to interact with faculty, seniors and classmates. A college is not just about education and training, but it's more than that. A college is a place where can you bring out your talents. You will build your good characters here, becomes a member of college society and showcase your talent. So don't feel shy after, just bring the best of yourself. In the end, you will cherish these happy moments. So last but not the least, I would like to thank everyone for joining in this celebration. It was my pleasure to welcome each one of you. Wish you all happiness, success as you are about to start a new life with new faces. Thank you. Thank you so much. Now, I would like to invite all the newcomers to come on the stage one by one to give a brief intro. परफॉर्म करना है वो करें, नहीं तो आए अपना नाम बताए और ये जो आपके सीनियर्स हैं आपको पूछेंगे, आपने कुछ एक दो सवाल वन बाय वन सारे आओ और फिर मैडम और ताहिर साहब से मैं ये चंबल जज करना है, मिस्टर फ्रेशर बोल रहे हैं। Please come on the stage one by one.
आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा ये आपने ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स को क्यों चूज किया? इसकी कोई खास रीजन? ओके चूज किया मिला। ओके योर रैंक? नेक्स्ट भैया जी तो कैमरा में एक जगह थोड़ा रुकना, थोड़ा आगे My name is Salman Khan. You give your brief intro. नाम से कुछ नहीं होगा, सारा बताओ कहाँ रहते हो, किस सेमेस्टर में पढ़ते हो, फुल इंट्रो। जो सीनियर है वो इनसे काम भी बुलवा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी करा। जो सीनियर है ना, अगर आपने इनसे कुछ अभी करवाना है, कुछ पूछना है या कॉलेज के बारे में कुछ बताना है, वो आप कर सकते हो। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, इसी पे आपकी जजमेंट होगी, मिस्टर प्रेशर और मिस प्रेशर। मैं ध्यान से हूँ बस से Anyone want to question from Suleiman? Anyone, audience, want a question from Suleiman Khan? Want to ask a question? Why did you choose mathematics? सवाल आपसे कि आपने मैथमेटिक्स को क्यों चूज किया? क्योंकि ये मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है और अच्छा भी है, मैं इससे मुझे समझ भी आता है। Your answer? MBA. Okay, Good. thank you. Next. थोड़ा जल्दी जल्दी क्या आप डांस कराओ, सॉन्ग बनवाओ, शेर बनवाओ, जो आप और आप कंप्यूटर कर रहे हो, क्लास में भी यही करते हो, यहाँ भी यही कर रहे हो। एंजॉय करो अपनी तो इवेंट। बाकी जो कर रहे थे, एक बंदा रखो उधर, बाकी सारे आगे बैठो, इधर पूछो इसको। बातें कर रहे भाई। I'm from Shadashi. In that we tell you about my schooling. I study at उर्दू में
बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू में बात करो। Rajan, and my own life, I want to become a professor. Good. Anyone want to ask question? Mr. Anis. भाई आपकी हॉबीज क्या है? Hobbies क्या है आपकी? शेयर कर सकते Hobbies share. One is reading books and painting. Very good, very good. Thank you so much. Next, please come on first. भाई पेंटिंग के बारे में तो अच्छी थी वहाँ पे हॉबी तो पेंटिंग Next. मैं थोड़ा जल्दी कर। मेरा नाम साहिर है। मैं शायद बासिर हॉबीज क्या है मेरा? गेम खेलता हूँ, वॉलीबॉल खेलते हैं। Very good. Em, सीनियर की फरमाइशें सुनाना पड़ेगी। सुनाओ जो कुछ आता है सॉन्ग में। चलो मैं स्टार्ट से बात करता हूँ। कॉलेज में जितना स्टाफ है उनमें से किसी की भी मिमिक्री कर लेता हूँ। मतलब जो पायलटिंग में हो, जो टीचर अच्छे लगते हैं, जो अच्छा मतलब पढ़ाने में लगता है कि ये स्टाइल अच्छा है, वो कर लेते हैं। चलो भाई साहब जी भाई साहब जैसे करते हैं पढ़ाते करते वो अच्छे करो बता सकते हो ऐसे नहीं बताना, आपने करके बताना। आप पता चलना चाहिए कि आप ऐसा नहीं हो क्लास में आ रहे हो। ठीक है, शायद वैसी कॉपी करके बता रहा है। शाबाश। वेरी गुड। आते ब्लैक बोर्ड। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज कम फास्ट। आजो आजो। मेरा नाम रीहा है और मैं शुक्रिया से बिलोंग करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही फर्स्ट टाइम मुझे ये मौका मिला स्टेज पे आके बात करने का। मेरी ख्वाहिश थी बचपन से। तो इस कॉलेज में आके मेरा सेकंड साल से मुझे मिला। तो इस तरह मुझे पता चला कि मेरा भी कितना मतलब एक बात करने का तरीका है। काफ़ी लोगों को आता है, काफ़ी कुछ, लेकिन वो एक लोगों के सामने बोलने में जो डर होता है ना, वो निकल जाता है। तो काफ़ी बार यहाँ प्रैक्टिस करें। स्कूलिंग टाइम में तो मुझे नहीं मिला, बट इतना कॉलेज आके मिला है। तो इस बात में बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं आज मेरा ट्रॉफी का एग्जाम था, मैं कुछ तैयार तो नहीं करके आई, बस थोड़ी शेयर करके मेरे फादर ने आज सुबह ही मुझे बताया, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मिट जाएगा गुनाहों का तस्वीर इस जहां से एक बार, मिट जाएगी गुनाहों की तस्वीर इस जहां से एक बार, अगर हो जाए सबको खुदा देख रहा है। लफ्जों में क्या लिखूं रब को तारीफ, लफ्जों में क्या लिखूं रब को तारीफ, जो ना मांगे तो नवाज देता है और जो मांगे तो बेहिसाब देता है। इसके दर पर सुकून मिलता है, इसकी इबादत में नूर मिलता है, जो झुक जाओ इसके सजदे में कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो अगर आप इससे कोई मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। क्या हॉबीज? मेरी हॉबी जो है एयरफोर्स ऑफिसर है और इसीलिए तो मैंने मैच चुना कि मैं एनडी का एग्जाम दूँ, बट कुछ एज लिमिट की वजह से मैं नहीं दे सकी। इंशाल्लाह आफ्टर द एग्जाम के लिए मैं रेडी हूँ। Are you singing a song? क्या गाना बोलते हो? ओके, आप कोई बात सुना सकते हैं। शाबाश। नहीं मैं
सर Thank you so much. Next. First of all, very warm good morning to all of you. I am respected honorable ma'am, respected sir and my dear all friends. First of all, I am Divya Gosel from BSc semester first. I am from Hasload. I have to tell you about my schooling. I studied at Little High School School Icon and I completed my 10th and 12th class from Little High School School Icon. Now I am here to graduate in this college. I want to be thankful to you, to all of you who attending this party with free love and devotion. And in this party, we had all the opportunities to be compatible, which is a pleasurable. Since party for the time being are a source of joy, but it also live delightful marks to our lives. Such events bring a brilliant joy in our daily life. So Freshers Party is a once in a lifetime day. Freshers Party is the beginning of a new phase of students' life journey in school and college. Once more, I am very thankful to Tahir sir and Akhil sir who helped to organize this party successfully. And our seniors left no stone unturned to make it best. On the behalf of all my class, I thanks to seniors who organized this nice, wonderful and fabulous party. मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी मैम के लिए। मैम शुक्रिया आपका, आपके आने से रौनक तो हुई। शुक्रिया आपका, आपके आने से रौनक तो हुई, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। ये पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैडम को ये डिपार्टमेंट जो जज्बात डिपार्टमेंट के जो जज्बात थे ये होते मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक उस्ताद के लिए नज़्म है। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल सिखाना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मज़ा तो तब है किसी खा के जर्रे को मनव्वर कर दो, मज़ा तो तब है किसी खा के जर्रे को मनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। किनारा इकबाल कुछ यूं फरमाते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए मुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे किए हुए सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे किए हुए सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Next.
मैंने सलाम किया, इसका जवाब दो। मेरा नाम महराज अख्तर है, मैं राजनीति जी नाम से बिलोंग करती हूँ और मैं फर्स्ट टाइम से इस कॉलेज की मैं इंटरेस्टिंग थोड़ी बातें शेयर करूँगी। जब मैं फर्स्ट टाइम इस कॉलेज में आई तो यहाँ पे एतान भैया हैं, तो उनकी मुझे पर्सनालिटी देख के ये लगा कि ये सीनियर थे और मैंने उनको सलाम कर दी। मैं चाहती हूँ कि हम चाहे कितना भी पढ़े, हाई लेवल का या लो लेवल का, लेकिन हमारी वे ऑफ टॉक, हमारी पर्सनालिटी ये डिपेंड करती है कि हम कितने एजुकेटेड। अगर आप किसी से अच्छी तरह बात करते हो तो ये पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हो। जैसे अफजल अहमद सर है, मुझे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है और ये हमें भी यही कहते हैं कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स की तरह रहो, अच्छी तरह रहो। और एनी क्वेश्चंस कोई मुझे कुछ पूछ सकता है? मेरी हॉबीज डांस करके दिखाओ। कोई सभी लगा दो। और क्या है आपकी पेंटिंग और नई जगह पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो टीम है वो आई है, अच्छा शायद कौन सा अच्छा लगता है? सारे मुझे कोई नहीं ये जो क्लास वाला है ना, ये आज प्रोग्राम के बाद जो मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, ये जाए दरिया तो समुद्र तलाश कर। मैं जा सकती हूँ? नेक्स्ट। आपको कॉलेज में कौन सा ऐसा टीचर है जिससे आप हाईली इंस्पायर्ड जो वो इंस्पायरेशन है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वो क्यों इंस्पायर्ड बात ये है सर, सर के पास ऐसे ट्रिक्स हैं, वो कोई भी क्वेश्चन होता है सर सॉल्व कर देते हैं, सर को बहुत अच्छा लगता है। तो वो बताओ, वो जो ट्रिक्स हैं वो बताओ। हाँ सर, कैसे हैंडल होते हैं और क्या होता है? कुछ जाते हैं, जैसे हमारे ओपरेटर होता है, सर बोलते हैं ओपरेटर इसको कहना चाहता है, सबके हाथ बात में ये पूछते हैं कि कहना चाहता है। नेक्स्ट। Good afternoon, everyone. I live in Pasir. Your hobby? Now I would like to invite Deepa Jani.
present the song on the stage. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द सवारने होंगे, मुस्कुराने के लिए सोचा ही नहीं दर्द सवारने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के लिए कर्ज उतारने होंगे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं, जिंदगी तेरे गम ने मुझे रिश्ते ने समझाए, जिंदगी तेरे गम ने मुझे रिश्ते ने समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं। तुम में शामिल हैं सुर्खियां जवां खून की, तुम में शामिल हैं सुर्खियां जवां खून की, आसमां से रंगे शफक खींच लो, क्या देखते हो दस्ते शमा की तरफ, क्या देखते हो दस्ते शमा की तरफ, तुम्हें अपना हक चाहिए ना तो अपना हक छीन लो। Dr. Akhtar Aziz Rana sir, please come on the stage and say a few words about this occasion. मेरे लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन है और मैं बहुत खुश भी हूँ आप लोगों को देख के। मुझे आज रियली ऐसा पता चला कि हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों का परफॉर्म करना, बात करना, ये सारी बात की मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ये सारी चीज़ें ऊपर थी। और जो फ्रेशर्स बैच आया उनके लिए मैंने एक मैसेज भेजा, वो मैसेज मैं स्टोरी के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बैलून सेलर होता है, स्ट्रीट बैलून सेलर, जो गलियों में बैलून बेचता है। उसके पास हर कलर के बैलून होते हैं हीलियम के, और जब वो उसका बिजनेस कम हो जाता है तो वो क्या करता है, एक बैलून हवा में छोड़ देता है। जब वो बैलून हवा में छोड़ता है तो बच्चे वो बैलून हवा में देखते और फिर उससे जाके वो बैलून खरीदते और उसका बिजनेस जो है वो आप हो जाता है। एक दिन क्या होता है, एक बच्चा उसका जैकेट खींचता है पीछे से, उसको पूछता है
कि जो आपके पास बैलून है, इनमें जो ब्लैक कलर का बैलून है, क्या आप इसको छोड़ोगे ये भी हवा में उड़ेगा? अब आपको एक जो बात आगे बता रहा हूँ वो बैलून कलर कहता है कि ये बैलून जो है इसको कलर नहीं उड़ा रहा, इसके अंदर जो चीज है वो हीलियम है इसके अंदर, वो इसको उड़ा रही है। तो इसमें मैसेज आपके लिए है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई कलर, कास्ट, क्रीड जो है ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। आपके अंदर क्या है, आपका टैलेंट क्या है, वो चीज आपको ले जाती है। और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल मैडम की वजह चाहूंगा, इसी डिपार्टमेंट का, इसी मैथ्स डिपार्टमेंट और इसी कॉलेज का मैं फर्स्ट स्टूडेंट। कल को मैं आपकी जगह था, मेरी फर्स्ट क्लास थी इस कॉलेज में मैथमेटिक्स की, वी आर 47 स्टूडेंट, मैथ्स की क्लास में 47 स्टूडेंट। इसी कॉलेज का लाइफ में मैंने यहीं से ग्रेजुएशन की है और 2008 में मेरी यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और 2022 में आज मैं वापस यहाँ एज ए फैकल्टी आया। मेरे लिए तो ये बड़ी प्राउड की बात है, हर एक आदमी के लिए बड़ी प्राउड की बात होती है कि आपने आलमा मेटर में जब वो एज ए टीचर आता है। जिस दिन मैंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया था उस दिन मुझे वो मेरा जो ड्रीम, मैंने जब आपकी जगह बैठा था तब वो मुझे मेरा ड्रीम जो है वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा था। जब मैं आपकी जगह बैठा था तभी मैं इंस्पायर हुआ था कुछ लोगों से। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि मैं साहिर साहब से बड़ा इंस्पायर हूँ, उनके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है। एक बच्ची ने कहा कि मैं आतर सर से बड़ा इंस्पायर हूँ, उनकी ड्रेसिंग सेंस से, जो भी कुछ वट एवर शी सेड। तो तब मैं भी किसी से इंस्पायर था और जिन लोगों से मैं इंस्पायर था उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो रिसेंटली रिटायर हुए हैं अपनी सर्विस से, और वो अल्लाह की ऐसी करनी कि मैक्सिमम लोग इसी कॉलेज में प्रिंसिपल उन्होंने सर्व किया। मेरे फर्स्ट टीचर कॉलेज के मैथ्स के स्टील सर मेरे कजन भी हैं, इसी कॉलेज में 15 साल सर्विस उन्होंने दी, यहाँ पर वो प्रिंसिपल भी रहे। उसके बाद मेरे टीचर काजी साहब रिसेंटली रिटायर हुए हैं, इसी कॉलेज में उन्होंने सर्विस दी। मेरे कॉलेज में टीचर थे वकार साहब, इस कॉलेज में उन्होंने सर्विस दी, वो भी प्रिंसिपल रिटायर हुए। और बहुत सारे लोग जिनमें हकीकत सर थे, मुसर शाह साहब थे, मेरे इंग्लिश के टीचर थे मुझसे जीएल शर्मा साहब, उनसे मैं बड़ा इंस्पायर था। जब वो कॉलेज में आते थे वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, जब बात करते थे लगता था कि भाई ये प्रोफेसर कोई अलग जिंदगी है। मैंने इस जॉब के लिए, ये जॉब मैंने जो है बाई चॉइस ली है, बाई चांस नहीं ली है। इस जॉब के लिए मैंने इससे पहले बहुत सारी जॉब छोड़ी है। मैंने अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, बहुत सारी जॉब जो है मैंने पीएचडी करने के लिए उन जॉब्स को जो है साइड किया। फिर जेके पीएचडी करने के लिए यहाँ आने से पहले मैं 3 यूनिवर्सिटीज में मैं परमानेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो चुका हूँ। इससे पहले मैंने ये हायर एजुकेशन ज्वाइन करने से पहले पालमपुर यूनिवर्सिटी में मेरी जॉब लगी, बट वो मुझे घर से कुछ अलाउ नहीं किया गया या कुछ और भी रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये सारी स्टोरीज इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपकी जगह था, जब आपकी जगह बैठा था तब मैं ये सब चीजें ड्रीम कर रहा था और इस ड्रीम को मैंने 10 से 12 साल लगाए पूरे करने के लिए। तो आज भी आपको ड्रीम करना है, अपना गोल जो है वो सेट करना है, आपने अपनी इंस्पायरेशन सेट करनी है। रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तिजोरी ने यूथ के लिए एक कॉन्क्लेव रखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारे स्पीकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है 15 या 20 स्पीकर्स में रखे थे। उसमें बहुत सारे लोग बाहर से भी थे, कोई मलेशिया से था, कोई किंग से था, उसमें एक स्पीकर मैं भी था। और मैं बच्चों से वहां यही मैंने बात की कि आपके अंदर क्या चीज है वो आपको ऊपर ले जाती है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे साथ एक स्कॉलर थी, अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो मेरा अप्लाइड मैथ्स सब्जेक्ट था, हमारे स्टेट में अप्लाइड मैथ्स का कुछ स्कोप नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता था मैंने मुझे जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पीएचडी करने के बाद मुझे फायदा होगा नहीं होगा। उसने ये बात अब घर जाकर अपने पापा से की और उसके पापा दिल्ली में एसबीआई बैंक में मैनेजर थे। उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तू अपने फ्रेंड को मेरी तरफ से मैसेज देना कि इंडिया में जॉब्स बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है। तब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रही है। और साथ में उसने एक वर्ड बोला कि टैलेंटेड लोग बहुत कम है, उस जॉब के लिए लोग बहुत कम है जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, वैसे लोग बहुत कम है। आप अपने अंदर वैसी चीज पैदा करो। जॉब मुझे नहीं लगता कि जॉब कम है या नहीं है। अब अपने कॉलेज में देखो 60 प्रोफेसर हैं, क्या इनके लिए जॉब्स कम थी? और जिस लिस्ट में मैं साहिर साहब लगे हैं, साहिर साहब और मैं एक ही लिस्ट में, एक ही दिन, एक ही एडवर्टीजमेंट में, एक ही दिन वाइवा देके हम लोग लगे स्कूल में या कॉलेज में। ये में से क्लास सीनियर थे, बट वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। और एक ही लिस्ट में लगे और उस लिस्ट में 3 पोस्टेज, बाकी पोस्टेज हम दोनों को छोड़ के वो सारी खाली रही। पूरी स्टेट में 2 लोग लगे हैं
दोनों आपके डिपार्टमेंट में हैं, दोनों आपके कॉलेज में आपके सामने, और बाकी पोस्टें खाली रही। जब वो पोस्टें खाली रही ना, जो पीएससी का रिजल्ट निकला, तो मेरे माइंड में फौरन वो उस लड़की की बात स्ट्राइक की। उसने मुझे बोला था कि पोस्टें बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत कम हैं। तो ये मैसेज मेरा आपके लिए है कि फील्ड बहुत बड़ा है, जॉब बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा कॉलेज कितना है। फिर आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी जिसके अंडर कॉलेज है, 120 कॉलेजेस हैं उसके, या 127 कॉलेजेस हैं। फिर देखो हमारी स्टेट कितनी है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया कितना बड़ा है, एशिया कितना बड़ा है, वर्ल्ड कितना बड़ा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं आपके लिए, हजारों किस्म की अपॉर्चुनिटीज, बस अपने अंदर वो चीज पैदा करो। अभी एक बच्ची ने बोला कि मैथ वाले लोग मुझे स्पेशल लगते हैं। वाकई ही मैथमेटिशियंस जो है वो स्पेशल होते हैं, और जो स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप अपने आप को उस तरह का बनाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ, और वो बैलून सेलर वाली बात आपके अंदर जो चीज है वो आपको आगे लेकर के। थैंक यू ऑल। बहुत सारी प्यार उनके लिए, बहुत सारी ग्रीटिंग्स हैं। आप लोग कॉलेज में आए, इससे पहले स्कूल में थे, वहाँ आपका स्कूल आपके टॉप, आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में होगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। लेकिन कॉलेज में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, डिफरेंट कास्ट से हैं, डिफरेंट एरिया से। अभी एक बच्ची यहाँ कह रही थी कि मैं शुपियन से हूँ, और शुपियन कहाँ और हम लोग कहाँ, दूसरे डिवीजन से। तो ये चीज आपका पर्सनालिटी है उसको डेवलप करती है कि जब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, डिफरेंट थॉट से मिलते हो, उनके साथ मिल के रहते हो। और बहुत अच्छा लगा। और मेरी स्पेशल ग्रीटिंग्स है सेमेस्टर 3rd और सेमेस्टर 5th के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन, यू पीपल हैव डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब। तो एक और जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कि मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर जो है वो मुझे अनाउंस करना है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर साहब और मैडम से कि वो सामने आए और वो अवार्ड्स भी दें। तो उससे पहले मतलब आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा एनी गेसेस, कोई मिस्टर फ्रेशर, एनी गेस फ्रॉम यू साइड, मिस्टर फ्रेशर कौन हो सकता है मिस्टर फ्रेशर? एंड द मिस्टर फ्रेशर So the Mr. Fresher is, वो कैमरे वाला कहाँ है? वो वीडियो से शूट करो। कैमरे वाला, वो कैमरे वाला अंकल आ जाओ। So the Mr. Fresher is, so the Mr. Fresher is Mr. So the Mr. Fresher is Mr. Salman Khan. आप सारे लोग मिस्टर फ्रेशर हो, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ दिनों के बाद मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करना है, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस वहां जो है वो और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। And any guesses for Miss Fresher? Any guesses? Any guesses? So the Miss Fresher जो है वो टाई है दो कैंडिडेट्स के बीच में। तो आप लोगों के any guesses? Shopian. Mrs. Shopian. Yes, exactly. Both Malina and Mehnaz. मुझे ये सब एक से बढ़कर एक लग रही थी। ये लोग सेंटर में आ जाओ, ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो इसने स्पीच करी है, मुझे लगता है कि वो सारा मैसेज जो है मेरा वो उसी स्पीच में था। सबसे बहुत अच्छी स्पीच थी। क्या नाम है आपका? रुबिया। चलो आगे बच्चे इसी मौका पर मेरे शेर जो अख्तर साहब, ताहिर साहब और
मैमूनिसा मैम की नजर करता हूँ, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर नाइमा निसा मैडम को कि वो जो अपना मैसेज है बच्चों से शेयर करें, और बच्चों के लिए एक मेरी तरफ से एक और मैसेज है, ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं यही आपकी इंस्पायरेशन होनी चाहिए। इनकी मैंने ताहिर साहब के बारे में आपको बताया, और मैडम के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि क्लोजली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड में मैडम को देखते आया हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैडम यहाँ हायर सेकेंडरी में लेक्चरर या टीचर थे, हाँ मैडम स्कूल में लेक्चरर थे, और मैडम की जर्नी जो है ये भी एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैडम ने स्कूल एजुकेशन ज्वाइन किया, मैडम ने पीएचडी की, और पीएचडी का रिसर्च वर्क करने के लिए मैडम को आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता था। कहीं जो राइटर था वो इंडिया से बाहर से जिनमें मैडम स्टडी कर रहे थे। फिर मैडम ने जेकेपीएससी क्वालिफाई किया, रजौरी कॉलेज ज्वाइन किया, फिर थन्नामती कॉलेज आए, और अभी मैडम जो है हमारे कॉलेज में सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर है। और मैं बहुत सारी चीजें मैडम से इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है वो सीखते रहता हूँ, बचपन से ही वो सीखते आया हूँ। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों के साथ जो भी आपने जो आज की मजलिस के मेहमान और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सर ने जो बातें की हैं ये इनकी अपनी फीलिंग्स है कि ये इतना मुझे अच्छा समझते हैं, वैसे भी इतनी अच्छी हूँ नहीं, ये छोटे हैं, ये प्यार करते हैं, इसलिए ये उस नजर से देखते हैं। और मैं डॉक्टर नईमा निसा नहीं हूँ, मैं नीमी हूँ, मुझे मैक्सिमम लोग नीमी मैम से कहते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह से। वो कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स आपके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ लगती है ना। सब कहते हैं कि मैथ मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगता भी है, और असल में सारी बात होती है इंटरेस्ट की। लेकिन एक बात बताऊँ, ये बहुत आसान चीज़ है। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ना तो ये कायनात पूरी मैथमेटिकल जो आपके वो रूल्स रेगुलेशन या जो है ना फार्मूला उन्हीं पे चल रही है। आप देखिए सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है ना। ये भी एक वही मैथमेटिकल फार्मूला ही अल्लाह पाक ने लगाया हुआ। पूरी कायनात आप देखिए वो गिनी चुनी हर चीज़ आपको मिलेगी बिल्कुल लिमिटेड में, और एक स्ट्रीम लाइन हर चीज़ कैलकुलेटेड है। मौसम आते हैं जाते हैं, लेकिन क्या है रोटेशन है ना। इसी तरह जब आपने ये कहा कि हमें मैथमेटिक्स का जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन वो वाकई में बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है और बहुत ईजी है। सिर्फ माइंड सेट की बात है। जिस तरह सर ने कहा कि आपको बुलंदी तक पहुंचाने के लिए किसी जाहिर चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत जो है ये शौक है, जो आरज़ुएं हैं, जो आपका माइंड सेट है, वही आपको ऊपर लेके जाता है। मैं जब छोटी थी ना तो मेरी जो वालिद साहब थे वो ज़्यादातर क्या किया करते थे कि उनका एक ही शौक था मुताला करना। घर में बुक्स आती थी बहुत सी, हर मौजू पर आती थी। तो मैं इतनी छोटी थी कि मुझे वो पढ़नी नहीं आती थी, तब भी मैं उनको खोल के देती थी और सिर्फ पिक्चर्स देखती थी। फिर वक्त के साथ मैंने अपने पापा की पूरी लाइब्रेरी एवरी चीज़ पढ़ ली। जासूसी नावल पढ़ रही हूँ, हिंदी के पढ़ रही हूँ, उर्दू के पढ़ रही हूँ, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी या फेवरेट लैंग्वेज मेरी उर्दू ही रही। तो बहुत सारी बातें अफसाने पढ़ रही हूँ, जो भी मुझे लगता था, कहानियाँ, स्टोरीज, जो रीडिंग मेरी द बेस्ट हैबिट थी। और रीडिंग हैबिट की वजह से मेरा क्या बना कि वो स्टेमिना बना कि मुझे बैठना है और एक जगह पढ़ना है। आज भी आप देखते होंगे मैं बाहर बहुत काम निकलती हूँ, ज़्यादातर मैं अपनी टेबल पर बैठी रहती हूँ। और फिर दूसरी चीज़ जो हमें ये पढ़ाई ये इल्म सिखाता है, ये ऑब्जर्व करना, बैठना, लिखना, पढ़ना, यही सबसे अच्छी आदत होती है, सबसे अच्छी हैबिट्स हैं।
जब ये बंदे के अंदर डेवलप करती हैं उसके बाद ही उसके सीखने का अमल शुरू होता है। मुझे एक जब बहुत पहले की बात है, प्रतिभा पाटिल जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट लेडी बनी थी, तो वो अपने इंटरव्यू में एक बार कह रही थी कि मैं छोटी थी तो मैंने अपने पापा से कहा कि पापा बड़ा कौन होता है, गवर्नर बड़ा होता है कि प्रेसिडेंट बड़ा होता है। तो पहले ऐसे ही खेलते खेलते पूछ रही थी पापा सीएम बड़ा होता है कि पीएम बड़ा होता है। अब वो कहते पीएम बड़ा होता है। मैंने कहा मैं पीएम बन जाऊँगी। फिर कहते हैं, मैंने पूछा गवर्नर बड़ा होता है कि प्रेसिडेंट बड़ा होता है। प्रेसिडेंट बड़ा होता है तो मैं गवर्नर नहीं बनती, चलो छोड़ो, मैं क्या करती हूँ और बिल्कुल यंग एज में मैं बन जाती हूँ प्रेसिडेंट। तो सबसे बड़ी बात जो सर ने भी कही, जब तक आपके आइडियाज क्लियर नहीं होंगे, जब तक कि आपका जो जहन में जो गोल है, जो एम है वो क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दूसरे आज की डेट में अगर हम सोचें, मैंने तो बहुत बचपन से ये कॉन्फिडेंस अपने दिल में लाया और हमारी परवरिश ही ज़माने ने ऐसे की कि हमें ना कोई बेटी या बेटे में फ़र्क लगा और ना आज लगता है। आज की डेट में भी कोई बेटी कोई बेटा कुछ नहीं है। बेटे अगर हैं, अगर वो मुहाफ़िज़ है तो बेटियाँ उससे ऊपर बढ़ के मुहाफ़िज़ हैं। बेटे एक बंदे के मुहाफ़िज़ हो सकते हैं, लेकिन जो बेटी है वो पूरे माशरे की, पूरी सोसाइटी की मुहाफ़िज़ होती है। और आपको ये सोच के चलना है कि आपको एक फील्ड नहीं है, आपको मेरी तरह, मैं कहती हूँ ना कि मैं रोल मॉडल नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो जॉब्स हैं, जो मेरे काम हैं, मैं आपको बता दूँ, मैं मदर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं सफाई वाली भी हूँ, मैं केयर टेकर भी हूँ, मैं वाशिंग भी करती हूँ। और मेरे घर में आपको आज तक कोई मेड कोई कुछ नहीं मिलेगा। आज तक मैंने अपना हर काम अपने हाथों से किया है। मैं सफ़र भी करती हूँ, जैसे सर बता रहे थे बिल्कुल सही उन्होंने बताया, मैंने फॉरेन के सफ़र भी किए हैं। और मैं एम में जब पढ़ती थी ना, तो मेरे लिए आपको बता दूं कि मेरा वो शेड्यूल क्या होता था, सुबह 8:30 बजे अपने डिपार्टमेंट जाना, अगर 2 बजे डिपार्टमेंट बंद हो रहा है तो उसके बाद 2 से 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी में चली जाती थी। रीडिंग रूम में हमेशा खुले रहते थे 24 आवर्स, लेकिन मुझे लगता था कि मैं रात को नहीं आ रहा पाऊँगी, थोड़ा सा अंधेरे से डर लगता था और कोई बात नहीं थी, बाकी सेफ्टी थी। लेकिन मुझे वहाँ से वापस हॉस्टल आते हुए थोड़ा परेशानी आई थी, इसलिए मैं रात को नहीं रुकती थी, लेकिन मैं बैठा करती थी। मैं 9 बजे तक रीडिंग रूम में बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करती थी कि मैं अगर घर से आई हूँ तो मैं कुछ सीख के जाऊँ, कुछ बन के जाऊँ, कुछ ऐसा लेके जाऊँ कि जो बाकी वाली बेटियों के लिए भी एक मिसाल बन जाए। तो आपकी तो भी केयरफुल, आप बड़े बड़े इदारों में आ रहे हो, आपको स्टेज मिल रहे हैं, आप खुश नसीब हैं। आपको जो चीज़ें हमने जाके बाहर की दुनिया में बड़ी मुश्किलों से हज़ारों मील का सफ़र करके सीखी, वो आज आपको अपने डोर स्टेप पर घरों में मिल रही हैं। तो इनकी कदर कीजिए, पढ़िए लिखिए, अच्छे से अच्छा इंसान बनिए। आज डिजिटल इंडिया की जब बात होती है तो मैं कहती हूँ द बेस्ट वे है कि आपके पास नॉलेज जो है वो गेन करने के लिए ढेर सारी फील्ड्स हैं, सिर्फ आपको एक अपनी उंगली से क्लिक करने की देर है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने मुझे हमारे सर को मुबारकबाद है, सर लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुझे भी मौका दिया कि मैं इसको एंजॉय करूँ। कुछ सजेशंस थी, जैसे आपने मिस्टर प्रेशर और मिस प्रेशर आपने जो किए हैं, इसी तरह मिस भी होते हैं, मिसालों में भी होती हैं, वो भी आपको रखने चाहिए थे। उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बच्चों की हो जाती है। आप छोटे हैं, आपने ये स्टेप उठाया है, इंशाल्लाह आगे जब आप इसमें बढ़ते जाओगे, ये एक शुरुआत है। और कहते हैं कि मंजिल पर पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी होता है। तो मुबारकें आपको उस्ताद इकराम को, ताहिर नदीम सर, अतर सर को कि उन्होंने आपको इतनी अच्छा स्टेज की अच्छी शुरुआत करके दी है। अब इसको आप कैसे अच्छे से अच्छा खूबसूरत बनाते हो, ये आप पर डिपेंड है। और मेरी तरफ से आपको सिर्फ एक ही शेर है जो डेडिकेट आपको करती हूँ कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की जगह। Now I would like to invite
Professor Tayyib Nadeem, please sir, please come on the stage. Respected Professor Dr. Naeem Nisa, Officiating Principal of the College, Dr. Athar Aziz Raina, Head Department of Mathematics and Applied Mathematics, special guests and invitees of today's event, students of semester first, and host of today's event, students of semester third and fifth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I feel greatly honored and privileged to be part of this program, this farewell party organized by students of third semester and fifth semester in honor of semester first students. My dear students, the very presence of respected officiating principal, Professor Dr. Naeem Nisa, in this program is a reflection of the importance that this program carries. Though formal vote of thanks will be proposed by someone else, I feel like thanking one and all who are present here and who have tried his or her best to make this program a great success. Ma'am, I would like to take this opportunity to place on record my sincere thanks, my sincere gratitude to you for your precious presence and for the words of wisdom that you have shared with us all. Thank you ma'am. Thanks a lot. I would be failing in my duty if I go without thanking students of semester third and fifth who have organized this program to welcome our freshers, the students of semester first. And at the same time, I would like to thank students of semester first who have accepted this invitation. Thank you very much. And at the last, I would like to thank the man of the occasion, the man behind all this, Professor Dr. Athar Aziz Raina. Thank you, sir, for your inspiring words. You are a source of inspiration for all of us, including me. Thanks a lot, and keep enjoying like this. But keep one thing in mind: play while you play, and work while you work. Keep this mantra in your mind, and you will be successful inshallah. जब आप खेल रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए, जो बंदा आपको खेलते हुए देखे उसको ऐसा लगना चाहिए कि बंदा कोई पढ़ाई करता ही नहीं। और जब आप पढ़ाई करने बैठो तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप भी खेलते हैं। सो ये चीज़ अगर आप माइंड में रखोगे, यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट योर ड्रीम्स। जो ख्वाब हर बंदा देखता है, आप में से कौन है जो ख्वाब नहीं देखता है? आंखें बंद करके भी देखता है, आंखें खोल के भी देखता है। तो ठीक है, the main thing is to translate those dreams into reality. ठीक है, और वो वही लोग कर सकते हैं who know the real meaning of this mantra कि play while you play and work while you work. ठीक है, so with these words I would like to say goodbye to you. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to invite Mr. Ashram. He want to ask some question from Athar sir and Bair sir. Mr. Ashram, please come on the stage. He want to ask the question. Mr. Ashram, please come on the stage and ask the question.
please listen to this. सर मेरा एक सवाल है सर, आप जब ग्रेजुएट थे सर, आप मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज करते थे सर? चलाओ भाई आप दो माइक एक माइक देखो, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे 11th-12th में मैथ्स नहीं था। तो कॉलेज में आके पहली बार मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा था और मुझे मैथ्स के साथ इतना लगाव था, मुझे और कुछ नहीं आता था मैथ्स के बिना, मुझे थोड़ा चीज़ें कम याद रहती थी और एक मैथ्स ही था जो मुझे याद रहता था। तब एयर सिस्टम था, तो तब जो बंदा 150 में से 100 नंबर लेता था मैथ्स के, उसको बहुत ब्रिलियंट समझा जाता था। तो मेरे फर्स्ट ईयर में 105 मार्क्स आए और मेरी क्लास में जो दूसरे थे, जो दो टॉपर्स थे, मेरे से ऊपर दो लोग थे, एक के 106 थे और एक के 107, मेरे 105 थे। तो तब मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया कि अगर मैं ये लोग जो 11th-12th में मैथ्स पढ़ के आए हैं, 47 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अगर 100 ले सकता हूँ तो ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही क्लास में पढ़ा हुआ है, एक तो BSc फर्स्ट में, ये जो फर्स्ट आपका सेमेस्टर हमारा ईयर होता था, हम एक ही क्लास में। तो दूसरा मैंने पढ़ा है जाके फिर PhD में। जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा तो तब मुझे चीजें पता चल गई थी कि एग्जाम कैसे पास करना है, एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना है। मेरा जो सब्जेक्ट्स थे BSc में वो थे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट थे जो मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें थ्योरी होती थी और थ्योरी में पूरी वो 36 पेजेस वाली शीट भरनी होती थी। तब ये माना जाता था कि शीट भी तोली जाती है और वो पूरी भरी भी होती चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ शॉर्टकट्स निकाले थे इंग्लिश और उर्दू करने के लिए। और कंप्यूटर में तो जो मैथ्स वाला है उसके लिए कंप्यूटर इतना टफ नहीं होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि उस साल जब मैंने BSc फर्स्ट किया था तो तब वो गैजेट जब आता था सब्जेक्ट वाइज टॉपर भी उसमें होते थे। अब तो मुझे पता नहीं है अब ऐसा होता है नहीं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तब 3 या 4 कॉलेजेस थे जिनमें कंप्यूटर और इंग्लिश का टॉपर था फर्स्ट ईयर में। जब मैंने BSc फर्स्ट की मेरे 63% मार्क्स से मुश्किल से 65 टॉपर्स होता था और एक आध दो बच्चे जो पोजीशन लेते थे वो ताहिर साहब थे। जैसे ताहिर साहब ने जम्मू यूनिवर्सिटी से BSc में पहली बार हमारे जोरी कोर्स में वो पूरी जम्मू यूनिवर्सिटी की जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें फर्स्ट पोजीशन लाई हुई है। और जब कभी आप जोरी कॉलेज में जाओ तो वहाँ लाइब्रेरी में एक ऑनर बोर्ड है, उस ऑनर बोर्ड में पहला नाम है वो ताहिर साहब का। तो मैं BSc फर्स्ट में कुछ जो लास्ट के 2-3 महीने में 1 साल पूरा होता है, उन 2-3 महीनों में मैंने अपना इस तरह से टाइम टेबल सेट किया था कि मैं 16 घंटे भी करता था। बस ये मेरी लाइफ का जो सक्सेस है वो यही था। कभी-कभी पढ़ते रहते थे मैथ, मुझे पता नहीं इंसान डिमोटिवेट हो जाता है सर, जी। उसको कैसे मैनेज सर? तो मैं आपको जवाब देता हूँ, प्रैक्टिकल तरीका करता हूँ आपको मैथ पढ़ने का। अगर आप लोग चाहते हो कि इनपुट कम हो आउटपुट ज़्यादा है, तो तरीका ये है, ये तो पता ही होता है कि टीचर ने कल क्या पढ़ाना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो टीचर ने कल पढ़ाना है उसको घर में एक बार नजर मारो पहले दिन, ठीक है। ये खाली मैथ के लिए नहीं है, ये सब के लिए। एक बार नजर मार के जाओ कि कल सर ने इस चीज पे पढ़ाना है। उसका फायदा क्या होता है, जब दूसरे दिन टीचर पढ़ाएगा, जब आप पहले दिन पढ़ोगे उसको खुद से पढ़ोगे, आधा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। जहां जहां आपको दिक्कत होगी वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे एरियाज की, ये इस एरिया में मुझे दिक्कत है, वो आप आइडेंटिफाई कर लिए। आप अगर क्लास में आप बाकी क्लास में पूरे सोए भी हो तो, क्योंकि बाकी तो आपको पता है, तो जो वो एरियाज जब आएंगे उस वक्त आप जाके, ठीक है, तो आप टीचर से पूछ सकते हो सर ये वाला इस पॉइंट पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार आप घर से पढ़ के आए, फिर टीचर ने जब आपको बताया, जो जो आपके ग्रे एरियाज थे वो भी क्लियर हो गए। फिर उसके बाद जब टीचर ने पढ़ाया, घर जाके क्या करो, एक सिंगल नजर मारो उसको जो टीचर ने पढ़ाया, फिर एग्जाम तक छोड़ दो। मेरी गारंटी पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के दिनों, जिन दिनों आपको जो छुट्टियां मिलती हैं 2-3, उन दिनों तैयार करो। मैथमेटिक्स की आप मैथमेटिक्स से कोई ज्यादा भी खतरनाक सब्जेक्ट आ जाए कोई, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं थी। ये मेरा पर्सनल तरीका है, मैं ये तरीका फॉलो करता था और अल्लाह की तरफ से अच्छे रिजल्ट्स भी ये तरीका देता है, ठीक है। तो आसान तरीका है। मैं एक शेर
जो ताहिर सर और आतिफ सर की नजर करना चाहता हूँ। न जाने कैसी नजर लग गई जमाने की, न जाने कैसी नजर लग गई जमाने की, कि शाख टूट गई मेरे आशियाने की। यही जो बैठे हैं महफिल में सर झुकाए, यही जो बैठे हैं महफिल में सर झुकाए, इन्हीं के हाथ में है किस्मत जमाने की। नाउ मैं एक और शेर जो तमाम सारे बच्चों के लिए नजर करना चाहूंगा। आज का ये दिन फिर न होगा, आज का ये दिन फिर न होगा, ये पल ये क्षण फिर भी न होंगे। फ्रेशर पार्टी तो बहुत होंगी ये दोस्तों, फ्रेशर पार्टी तो बहुत होंगी दोस्तों, ऐसा आलम ये फिर न होगा। Now we have come to the end of program. I would like to call Mr. Anis for vote of thanks. वो किसी ने डांस करना करना है, कैमरा बंद करके वो करते थे, कैमरा बंद करके वो मेरे को बस कर देता